A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So class, today we all are going to start our new chapter of your book Geography, and the name of your chapter is Water Resources. Okay, water resources. What do you mean by the term resources? What do you mean by the term resources? We have studied this term from from I think from class 8 onwards. We are like talking about resources, and even in class 10th also, the very first chapter of your geography have this definition and have this meaning of what is resources and what are the different types of resources. So if I say everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, uh, provided it is technically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resources. So if I say in the like simple language, everything that is available in our environment is known as resources. Okay, so now what is a water resource? Water is a type of resource. Water is a type of resource, a very important natural resource, very important renewable natural resource. So we will talk about water resources in this chapter. Basic, mm, basically, like you all are very much aware about it, like 3/4 of the earth's surface is covered with water, but only a small proportion of fresh water is available. Now just look at this pie chart here. Just look at this pie chart here. This is the world water distribution. We have this pie chart. 98% और you can say कि 3/4 portion जो अर्थ का है वो क्या है, 3/4 portion जो अर्थ का है, और you can say 70% जो हमारा अर्थ है, अर्थ surface है, वो water से covered है. But instead of that also we have like a very smaller proportion of fresh water available for us, available for is usable for us. Only small proportion of water is usable to us. Why? Because 98%, approximately 97, you can say 97% water is salt water, is an ocean. ठीक है, is salt water. 98% water आपका salt water है, and वो हमारे use का नहीं है. We can't drink it. हम अपने basic needs के लिए हम हमारे यूजेस के लिए जो है उस सॉल्ट वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं. सो ओनली लाइक अप्रोक्सीमेटली 2% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल टू अस, एंड उसमें भी जो है फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स में है. 87% आपका ग्लेशियर में है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, और यू कैन से इन एंटार्क्टिका, ठीक है, वहां पे है. और ग्राउंड वाटर लेवल कितना है? ओनली 12%, एंड रिवर्स और लेक्स में ओनली 1% वाटर जो है अवेलेबल है. सो ये वर्ल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ आया कि कैसा है कि 3/4 of the earth surface is covered with water, but instead of that we have only like small proportion of usable water to us. So ये जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड. कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? इट इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ or and ground water. It is mainly obtained from the surface runoff. जैसे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स जब पिघल के आते हैं तो उसको हम बोलेंगे सरफेस रन ऑफ. एंड द ग्राउंड वाटर जैसे पर्सिपिटेशन हो रही है तो कुछ वाटर जो है क्या है? ग्राउंड वाटर. वहां पे भी तो ग्राउंड में भी जाके क्या होता है? इंटरकेट होने लग जाता है. तो ठीक है, वहां तो ये दो आपके तरीके हैं. मेनली these two are the main things from where fresh water is obtained. And ये जो surface runoff है, ground water है, वो भी क्या हो रहा है? renew हो जाता है, recharge होता है, continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. Now what is this hydrological cycle? You all are like know about it. What is hydrological cycle? बहुत छोटे से पढ़ रहे हो. वाटर साइकिल पढ़ा है ना? ठीक है, उसी का ही वाटर साइकिल इज लाइक simple name given to this hydrological cycle. Now you call this
Now there is a term, related term for this water cycle, and you will call it now hydrological cycle. Now what is hydrological cycle? वही है, क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन से फिर क्या हो रहा है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन हो रही है, अगेन इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, वापस से इवेपोरेशन हो रहा है, एक ये प्रोसेस है, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये जो सरफेस रन ऑफ है, ग्राउंड वाटर है, दीज लाइक they are continually being renewed and recharged throughout the hydrological cycle. तो question arises, मतलब मैम अगर सब कुछ रिन्यू हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है, जो वाटर अवेलेबल है हम उस वाटर को फिर से यूज कर सकते हैं, तो व्हाई लाइक यहाँ इतना वाटर स्कैसिटी क्यों करते रहते हैं, ठीक है। So now like all water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is renewable resource. Obviously water is a renewable resource, and we might wonder like if 3/4 of the world's world is covered with the water, and water is a renewable resource, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? Why water is scarce? Why it is predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? So these are like some of the questions, ठीक है, कि 3/4 वर्ल्ड हमारा पानी से कवर्ड है, वाटर इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स टू, तो जितना फ्रेश वाटर है वो रिन्यू भी हो सकता है, फिर भी हम बोलते रहते हैं कि जो है वाटर स्कार्स है, वाटर इज अ वेरी स्कार्स रिसोर्स, वी हैव टू यूज वाटर वेरी सेंसिबली एंड समथिंग लाइक दैट। तो देन व्हाई दिस क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वाटर इज स्कार्स, ठीक है। सो देयर आर सम फैक्ट्स अबाउट वाटर व्हिच आई वुड लाइक टू से, इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, बट क्या है कुछ approximately 97% of the total volume of the world's water is estimated to exist in ocean, ठीक है, ओशियन और सीज में है। only 2.5%, only 2.5%, और यू कैन से नियरली 3% वाटर जो है फ्रेश वाटर के फॉर्म में है, उसमें भी 70% जो 2.5 और 3% है, 3.5 का भी आई show you that picture in my in the last slide. Just look at this picture once again, just look at this salt water, ठीक है, approximately 2% water आपका जो है, मतलब 2.5 नियरली 3 के अराउंड मान लो, जो कैसा पानी है, फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर भी उसमें से 87% जो हमारा वाटर है, ठीक है, 87% वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, शीट्स, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। ग्राउंड वाटर 12% एंड रिवर और लेक्स ओनली 1% है, ठीक है। तो ये कुछ है। इंडिया जो है, इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली 4% जो है ग्लोबल प्रेसिपिटेशन है इंडिया में, एंड इंडिया की जो रैंक है 133 है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। हर एक साल में इंडिया की जो वाटर अवेलेबिलिटी है, ठीक है, हर एक पर्सन के पास, वो उसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 133। ओके, सो नाउ योर क्वेश्चन, व्हाई वाटर इज स्कार्स, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इट इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स, आवर 3/4 वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर, फिर भी इसको स्कार्स स्कार्स बोलते रहते हैं, कमी है कमी है कमी है, क्यों बोलते हैं? सो वाटर स्कैसिटी एंड द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। So now we will talk about these topics: water scarcity, need of water conservation and management separately. Okay, so now our today's topic is water scarcity. What is water scarcity? ठीक है, so as you all know, like there is an abundance and renewability of water. तो क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सबको ये अराइज, सबके दिमाग में चल रहा है कि मैम इतना पानी है, इतना रेन्यूएबल भी है, रिचार्ज भी हो रहा है, फिर भी हम इसको क्यों बोल रहे हैं, हाउ इट कैन बी स्कार्स, स्कार्स कैसे हो सकता है ये वाटर, ठीक है। So it associate with regions having low rainfall or those that are drought prone, ठीक है। Now you are thinking कि हाँ हो सकता है, जैसे कि हम लोग राजस्थान में रह रहे हैं, तो राजस्थान के जो बहुत ही एक्सट्रीम जगह है जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे क्या यहाँ पे रेनफॉल भी कम हो रही है, तो यहाँ पे पानी की कमी हो सकती है, या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पे सूखा होता है, ऐसे एरियाज होते होंगे ना जहाँ पे पानी की कमी होती होगी, ठीक है। हम सबके दिमाग में यही क्वेश्चन चलता है, ठीक है, कि
it is associated with those regions which are having low rainfall, or those regions which are drought prone. Okay, like in Rajasthan, women balancing many matkas and used for collecting and storing water and traveling long distances to get water. Like ये सारी चीजें जो है हम imagine करने लग जाते हैं, but this is not the only reason. ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली रीजन कि जो ये सीजनल वेरिएशंस हैं या फिर लो रेनफॉल है किसी एरिया में, वो एक रीजन नहीं है वाटर स्कैर्सिटी का. दे आर वाटर स्कैर्सिटी इज कॉज्ड ड्यू टू वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन. ऑब्वियसली सीजनल वेरिएशंस हो रही है, एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना है, किस एरिया में कितना है, ये तो एक मेन रीजन है ही. इसके साथ साथ में और क्या रीजंस हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन. So now we are like over exploiting our water resources. हम over exploit कर रहे हैं. Like we are having water, तो हम क्या कर रहे हैं? Faucets. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि क्या कर रहे हैं. Faucet ऑन है तो ऑन ही है, हमें लगता है ठीक है पानी तो बहुत सारा पड़ा है ना, हमारे टैंकी में तो पड़ा है, हमारे टैंक में तो पड़ा है, तो हम यूज कर लेते हैं. तो समटाइम्स व्हाट हैपन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ये मैंने बहुत छोटा सा हाउस होल्ड एग्जाम्पल दिया है. ऐसे ही आप लॉन्ग टर्म में सोचो कि हम कैसे वाटर रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए. ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इरिगेशन के लिए हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर यूजेस. नाउ एक्सेसिव यूज हो चुका है. स्विमिंग पूल्स, ठीक है, ये जस्ट एक्सकर्शन के एग्जांपल दे रही हूँ. स्विमिंग पूल्स हो गए आजकल, वाटर एक्टिविटीज इतनी हो रही है, ठीक है, तो उसमें हम एक्सेस और एक्सेसिव यूज कर रहे हैं. वाटर का अनइक्वल एक्सेस है हमारे पास, अनइक्वल एक्सेस है लोगों के पास. जस्ट लाइक इन राजस्थान और इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर सम एरियाज जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी हर कहीं, मतलब हर जगह नहीं है. तो पर्सन्स हैव टू ट्रेवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फॉर फेचिंग द वाटर, राइट, फॉर फेचिंग वाटर. The excessive use, unequal access, these are like some of the causes of water scarcity among different excessive access to water among different social groups. different social groups के अलग अलग क्या है, water demands हैं, water needs हैं. तो ये कुछ causes हैं जिसके वजह से क्या हो रहा है, water scarce हो रहा है. So now water scarcity, we have like divided this water scarcity into two aspects. First one is the quantitative aspect and second one is the qualitative aspect. What is this quantitative? Quantity means quantitative means quantity, कितने amount में है, in how much amount it is available to us. ठीक है, that is quantitative. Qualitative की कितनी अच्छी क्वालिटी है हमारे पास पानी की. ठीक है, ऐसा तो नहीं है फ्रेश वाटर, कितना फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर क्या एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है, क्या वो पीने लायक है, क्या वो यूज करने लायक है. तो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एंड द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. सो रीड करते हैं वन बाय वन. व्हाट इज दिस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एंड द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट? A large population requires more water not only for domestic use but also to produce more food. Now, so like many of our cities are example for like urbanization is there. ठीक है, many rural population is migrating to cities for the job purpose, for the employment purpose. ठीक है, तो cities क्या हो रही है, ओवर पॉपुलेटेड हो रही है. अब ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो पानी की जो नीड है वो भी ज्यादा होगी. इट रिक्वायर्स मोर वाटर, नॉट जस्ट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज, बट अगर पॉपुलेशन है तो क्या है, फूड ग्रेन्स की भी जरूरत होगी, क्रॉप्स को भी ग्रो करने की जरूरत होगी. तो वी आर लाइक इफ population is very large, it requires more water for domestic use and to produce more food. ज्यादा से ज्यादा फूड को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, we need water, right? So to facilitate higher food grain production, water resource are being over exploited. ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल को अब क्या हो रहा है, पहले एग्रीकल्चर, नेचुरली एग्रीकल्चर होता था. ठीक है, तो फार्मर्स क्या करते थे, अब नॉर्मल क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, जितना पानी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो कर लिया, राइट. बट नाउ
डिमांड ज्यादा हो चुकी है, तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इवन ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद भी क्या हुआ था, उसमें हाई विल्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स का यूज किया, फर्टिलाइजर्स का यूज किया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया, एंड दीज प्रोडक्ट्स डिमांड फॉर मोर वाटर। ठीक है, ये जो हाई हाई यील्डिंग HYV सीड्स थे वो और ज्यादा क्या डिमांड कर रहे हैं, दे आर डिमांडिंग मोर वाटर, दे आर डिमांडिंग मोर वाटर। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, ग्रेन्स क्या है, ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हमें पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो हम ग्राउंड वाटर टेबल जो है एकदम डिक्रीज हो गई, हमने पानी की कमी होने लग गई, तो हमने ग्राउंड वाटर जो है एक्सेसिव यूज करने लग गए। वी आर लाइक फेचिंग ग्राउंड वाटर फ्रॉम मशीन्स, हम फेच कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर टेबल भी क्या हो गया, एकदम लो हो चुका है ग्राउंड वाटर टेबल भी। ठीक है, और टू एक्सपेंड इरिगेटेड एरियाज फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, अब ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया है, अब हमें प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, तो हम इवन ऐसी लैंड्स जो बंजर जमीनें हैं या फिर ऐसी लैंड जहाँ पे ड्राई एरियाज है, वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, वहां पे भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब फार्मर्स ट्यूबवेल्स लगा लेते हैं। ठीक है, और इरिगेशन फैसिलिटीज अब ज्यादा अच्छी हो चुकी है, ट्यूबवेल्स लगाने लग गए हैं फार्मर्स। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक तो ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज भी हो रहा है और वाटर जो है ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है। ठीक है, तो तो मेन कॉज यहाँ पे देख रहे हो पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा खाने की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा खाने की रिक्वायरमेंट है, तो हमें वी हैव टू प्रोड्यूस मोर, एंड इफ वी वांट रियली वांटेड टू प्रोड्यूस मोर, वी हैव टू यूज द qualitative seeds, chemicals, fertilizers, pesticides, and for this जो पानी है वो ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही है, इंडस्ट्रीज लाइक दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, ऑब्वियसली मशीन्स को क्लीन करने के लिए, इवन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, और जो केमिकल्स वगैरह निकल रहे हैं उससे वाटर क्या हो रहा है, पोल्यूट भी हो रहा है। वी विल टॉक अबाउट इट इन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कैसे पोल्यूट हो रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी वाटर की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वहां पे क्या, उससे क्या हो रहा है, उससे भी वाटर की जो क्वांटिटी है, मतलब हम वाटर का क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, hydroelectric power, like we are using water for generating electricity, we are using it, right? So for hydroelectric power, we are for generating electricity, we are using like dams, we are using river water, right? So even after intensive industrialization, urbanization, they created a like vast opportunities for us, but large industrial houses are as commonplace as the industrial units of many MNCs. The ever-increasing number of industries has matters worse by exerting pressure on existing freshwater resources. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा अर्बनाइजेशन, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, और एंड से ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, एंड समटाइम्स व्हाट दे यूज, लाइक दे आर यूजिंग, एमएनसीज भी क्या कर रही है, वाटर डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ट्यूबवेल्स लगा रही है। ठीक है, और टैंक्स लगा रही है, राइट? तो ये आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हुआ बेटा। ठीक है, now your next is qualitative aspect. What do you mean by the term qualitative aspect? Like in what quality we have water with us, we have like 2.5% fresh water in our world, but and that fresh water is like recharging, renewing, regenerating, right? But कितनी अच्छी क्वालिटी में वो वाटर जो है हमारे पास अवेलेबल है, तो इट इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स। ठीक है, हमारे नीड्स को सफिशिएंटली फुलफिल करने में वाटर इज अवेलेबल, need, but the area still suffers from water scarcity. There are some areas जो अभी भी क्या कर रही है, water scarcity से like suffer कर रही है। अब कोई जरूरी नहीं है राजस्थान है तो राजस्थान में लो यहाँ पे लो precipitation है तो यहाँ पे water scarcity,
वाटर स्कैसिटी अभी मैंने बोला ऐसे सिटीज में, ऐसी प्लेसेस में भी होती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, क्योंकि क्या है, अब वहां पे पानी तो उतना ही अवेलेबल है ना जितना है। अब वो वहां पे जाके लोग बसने लग जाएंगे, रहने लग जाएंगे, तो लोगों, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, वाटर तो इंक्रीज नहीं हुआ है ना, वाटर डिमांड, वाटर तो उतना ही रहेगा, राइट। तो इससे भी क्या है, वाटर स्कैसिटी होती है। तो दिस स्कैसिटी में बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। अब वाटर स्कैसिटी जो है बैड क्वालिटी के वजह से भी आ सकती है, कि अगर पानी पोल्यूटेड वाटर है, गंदा पानी है पर गंदा पानी है, तो क्या वो हमारे लिए यूजेबल है? No. So water scarcity may be there due to the bad quality of water. Even if there is ample water to meet the needs of people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemicals, pesticides, fertilizers used in agriculture. Even groundwater में जो है लाइक हम जो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं उससे पल्यूट हो रहा है। तो कितनी अच्छी क्वालिटी में हमारे पास पानी है, ठीक है, हमारे पास। अब बैड क्वालिटी वाटर है तो ऑब्वियसली गंदा पानी तो कोई पिएगा नहीं ना, या यूज नहीं करेगा, तो उससे वाटर स्कैसिटी जनरेट हो सकती है, वाटर स्कैसिटी हो सकती है, राइट। सो दीज आर लाइक सम ऑफ द यूजेस, some of the like things which we are done, which we are doing, and we are polluting, through which we are polluting water. Okay, so there is ample amount of water to meet the needs of the people, but what we are doing, we are like polluting it for our like for our you can say कि हाँ, जैसे कि हम अपने मतलब के लिए क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दैट वाटर, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो, एक्सकर्शन हो, वाटरफॉल हो, या फिर स्विमिंग पूल हो, ये सारी चीजें भी हो, तो वी आर यूजिंग दैट वाटर। तो इससे जो वाटर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड इससे वाटर स्कैसिटी, महाराष्ट्र के कुछ एरिया में आप देख सकते हो वाटर स्कैसिटी। अब जैसे समटाइम्स व्हाट हैपन, फ्लड आ जाता है, ठीक है, फ्लड आ जाता है, पानी ही पानी है, तो अब आप बोलोगे मैम वहां पे वाटर स्कैसिटी क्या है, पूरे जगह पानी ही पानी है, तो कैसे वाटर स्कैसिटी होगी? क्वालिटेटिव वाटर नहीं है ना, लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं कर रहा है, क्वालिटेटिव वाटर होना जरूरी है। अगर हम उस बैड क्वालिटी का, जो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर है, अगर उसको हम यूज करते हैं, तो इट इज वेरी मच hazardous for us, right? So class, this is all about today. We have gone through this topic of water scarcity. Okay, go through this topic, read this topic, and if you face any problem, do let me know. Thank you so much for joining the class, everybody.